Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पुत्र की महिमा हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो। Thank you for joining with us, Satya Markam TV, the TV channel of United Nations of Truth. यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रूथ के द्वारा जो कार्यक्रम चलाने वाला जो चैनल है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you for joining with us, Breakfast with Jesus program. धन्यवाद देते हैं कि सुबह का नाश्ता यीशु के साथ में इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो गए। Jesus Christ is giving us the breakfast through His words, the bread of life, omnipotent words. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि जो हमारे आज सुबह में नाश्ते के लिए जो उनका वचन हमारे लिए जो सर्वसामर्थी वचन है देते हैं। So during the first coming of Jesus, Jesus was speaking very much the kingdom and kingdom of God. यीशु वास्तविक रीति से परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। For that he brought one of the main requirement and a qualification. What is that? In Matthew 4th chapter, in Mark 1st chapter, he was speaking very much about you repent and believe in the gospel, he said. हम लोग देखते हैं कि मत्ती के चौथे अध्याय में और मार्कुस की किताब के पहले अध्याय में वह कह रहा है, यीशु खुद कह रहे हैं कि पश्चाताप के बारे में। So what is the gospel? और ये सुसमाचार क्या है? Generally we in the Christians say gospel means good news. और हम लोग मसीह लोग ये विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन लोग विश्वास करते हैं कि गॉस्पल का मतलब होता है एक अच्छा सुसमाचार। That's the reason whenever Christians conducting some public meetings or a crusades or a gospel meetings, they always preach about the miracles of Jesus, the healings of Jesus, and the deliverance of Jesus, what he did 3 years ministry. और जो भी प्रचार किया जाता है मसीह सभाओं में और चंगाई की सभाओं में कि यीशु ने जो जो काम किए चंगाई के बारे में और लोगों के अंदर में आश्चर्य कर्म जो के उसके बारे में प्रचार किया जाता है। But even though those things are the good things and good news, but actually that is not the gospel. हाँ, ये बात सही है कि सारी बातें सारे काम जो यीशु ने किए वो सभी अच्छे हैं, लेकिन वो एक सुसमाचार नहीं है। What Jesus did 3 years ministry, the healings, the miracles, the wonders, the deliverances, it is a good news, no doubt about that. But that's not the gospel. यीशु ने 3 साल तक जो भले काम किए, जो अच्छे काम किए, चंगाई के काम किए, चमत्कार के काम किए, मुक्ति दिलाने के काम किए, ये सब अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ यही एक सुसमाचार नहीं है। Then what is the gospel? तो सुसमाचार क्या है? 1 Corinthians chapter number 15, 1 to 4, when you read it, Paul was clearly giving the definition of the gospel, the truth of the gospel, the secret of the gospel there. पहले करंथियंस 15 अध्याय और 1 से 4 तक हम लोग देखते हैं कि पौल स्पष्ट रीति से कहता है कि स्वच्छ सुसमाचार का सार की सच्चाई क्या है। According to Paul, referred in 1 Corinthians 15, 1 to 4, the gospel means Jesus died for our sins, number 1, buried for us, number 2, resurrected for us, number 3. This is a gospel. पौलुस ने वहाँ पर स्पष्ट किया है पहले करंथियन 15वां अध्याय 1 से 4 में कि यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए जीवित हुआ और यही एक सुसमाचार है। So this is the secret of the gospel. Paul is mentioning in the Ephesians 6th chapter, verse number 20. और इफिसियों के 6वें अध्याय और वचन 20 में लिखा है कि यही एक सुसमाचार है।
Many people do not understand this. बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ लेते हैं। The pastors and churches always talk about the 3 years ministerial period, healing, miracles, wonders, but only once in a year, during the Good Friday time, they talk about the death, burial, resurrection of Jesus. सिर्फ साल में 1 या 2 बार, या तो गुड फ्राइडे उत्तम शुक्रवार के दिन में यीशु के क्रूसीफिक्शन के बारे में, उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया उसके बारे में, उसके जीवित के बारे में बताते हैं। Jesus died for our salvation. हमारे उद्धार के लिए यीशु ने अपने प्राण दिए। Jesus died for our forgiveness. यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए उस क्रूस पर मर गए। Forgiveness in our soul. Secondly, forgiveness in our spirit. Third, forgiveness in our body. हमारे शरीर में और प्राण में और आत्मा है क्षमाएं पाए, और इसीलिए यीशु ने अपने प्राण उस पर जगह पर दिए। So that is the most important need of the gospel to us. वही एक महत्वपूर्ण जरूरत है हमारे लिए सुसमाचार समझने की। Before coming to Jesus, whatever the things we have done, we need a forgiveness. और यीशु में आने के पहले, यीशु को समझने के लिए, यीशु को स्वीकारने के पहले जितने भी सारे हमने काम किए वो सारे पाप हैं। Otherwise, from the birth till we meet Jesus, whatever the crime we have done in the past life, we need forgiveness. That's the reason Jesus died, buried, and resurrected. जब से जन्म से आज तक जितने भी सारे बुरे काम किए, सारे गलत काम किए, सारे पाप किए, उसके लिए क्षमा का होना जरूरी था, और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण उस क्रूस पर दिया ताकि हम उन सारे पापों से मुक्ति या क्षमा पाए। Even after the baptism, in our today life, whatever the mistakes, knowingly or unknowingly we do, we need every day forgiveness. हम लोग यहाँ तक कि बपतिस्मा पाए हुए के बाद में भी और यीशु मसीह में आने के बाद में भी, यीशु को विश्वास करते हुए भी, जानते हुए अनजानते हुए जो भी पाप हमने किए, हमें क्षमा पाना जरूरी है। हर रोज क्षमा पाना जरूरी है। That's the reason we need the words of Jesus, the omnipotent word, filling in our soul and heart and bringing healing, salvation and forgiveness. और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है सर्व सामर्थ्य वचन है, यीशु का वचन जो है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है, जो हमारे प्राणों के छुटकारे के लिए और चंगाई के लिए बहुत जरूरी है। Brethren, do you have a forgiveness by the death, burial, resurrection of Jesus? क्या आप भाइयों, क्या आपके पास वो क्षमा का जीवन है, जो क्षमा पाया हुआ जीवन है कि यीशु के द्वारा जो यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, गाड़ दिया गया और वह तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे। Let's pray, brethren. आइए हम प्रार्थना करें भाइयों। Our God of eternity, हमारे अनंतकालीन के पिता परमेश्वर, our King of everlasting, और अनंतकालीन के राजा, our God of Abraham, Isaac and Jacob, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, thank you for Jesus Christ who came for us, lived, died, buried and resurrected for our salvation. हमारी उद्धार के लिए जो यीशु आए उनके लिए मैं धन्यवाद देते, जिन्होंने अपना प्राण दिया, जो हमारे लिए रहे, जिनको गाड़ा गया और जो तीसरे दिन जिंदा हो गए, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। Thank you for God the Holy Spirit who is dwelling in us and preparing our soul, spirit, bodies for the second coming of धन्यवाद Jesus. देते हैं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए कि जो हमारी तैयारी करते हैं यीशु के मसीह के दूसरे आगमन के लिए। God, thank you for the death, burial, resurrection of Jesus. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि यीशु ने जो हमारे लिए प्राण दिए और जो गाड़े गए और फिर जीवित हो गए। Thank you for the forgiveness. धन्यवाद देते हैं कि क्षमा हमारे लिए दे दी। We need a forgiveness हमें क्षमा की जरूरत है, so that we need not to face
the penalty of those crime in the white throne judgment. ताकि हम लोग उसके लिए कुछ ना दे सके कि हमारे लिए जो यीशु ने हमारे पाप की क्षमा के लिए उस क्रूस पर दे दिया है और हमें उस न्याय के दिन के से बचाया है। Oh God, you heal us, you save us, and give us a forgiveness. परमेश्वर हमें क्षमा कर दे और हमें बचाए और हमें हमारी तैयारी कर दे। We give all glory to the word of God. हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। Father God, we ask His prayer in the name of Jesus with the help of the God, the Holy Spirit. Amen. हम परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता से ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। May Jesus heal you, save you, and bless you. यीशु आपको चंगाई दे, आपको बचाए और आपको आशीर्वाद दे, ये प्रार्थना हम करते हैं। Amen. आमीन। Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो, परमेश्वर पुत्र यीशु की महिमा हो। We welcome you to watch our website truth.edu.in to know more about our spiritual courses and academical courses. हम आपका स्वागत करते हैं ये सारे कोर्सेज में आप जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए। And we have a long-term courses for 2 to 3 years, medium-term courses for 1 year, and now we are introducing short-term courses for 3 months. हमारे पास बड़े लंबे समय तक चलने वाले 2 से 3 साल तक चलने वाले और मीडियम टर्म कोर्सेज 1 साल तक चलने वाले, और अभी हम आपको परिचय करा रहे जो छोटे समय तक चलने वाले शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 3 महीने तक चलने वाले। The program of 3 months short-term courses is as follows. Every month, 2 times, we run the classes for 2 hours and 2 hours, including your question answers. और 3 महीने के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है वो महीने में 2 बार चलेंगे, और इस प्रकार से पहले हफ्ते महीने के पहले हफ्ते में 2 घंटा और महीने के आखिरी हफ्ते में 2 घंटा, इसी तरह से 1 महीने में 4 घंटे और 3 महीने में ये 12 घंटे तक कोर्स चलेंगे। और इसमें साथ में हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे और प्रश्न और सवाल जवाब किए जाएंगे। For a month 4 hours, for 3 months 12 hours. There in the 12 hours we are covering 100 secrets of any short-term courses. हर महीने में 4 घंटे यानी कि 3 महीने में 12 घंटे, इस प्रकार से कोर्स में हम लोग समय को पढ़ते हुए हम लोग करीबन 100 ऐसे रहस्यों के बारे में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। The fee structure for a 3-month short-term course, if you pay every month, that is 500 rupees, total 1500 rupees. At one shot, if you pay 500 rupees, we are giving discount. So 1000 rupees, if you pay, you can enjoy 100 secrets, 12 hours in 3 months program. और 12 घंटे में करीबन 100 ऐसे रहस्यों के बारे में का आप आनंद उठा सकते हैं जो परमेश्वर के वचनों से हमको आपको देंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या कोर्स की फीस भरने के लिए एक कोर्स जो एक समय जो महीने का 500 रुपये और 3 महीने में जो 1500 रुपये होते हैं, अगर आप एक ही साथ में इस पैसे को भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये तक ये फीस पड़ेगी। Another course I am introducing you now, that is about the soul, spirit, body. और भी एक कोर्स में आपको परिचित कराने जा रहा हूं जो प्राण, शरीर और आत्मा के बारे में है। How the soul, spirit came inside the Adam, first man. और ये प्राण, शरीर, आत्मा, ये सारे तीनों बातें आदम जो पहला मानव है उसके अंदर कैसे आ गई। It's very difficult to hear this kind of secrets. You don't have it in any other Christian dictionary, concordances and lexicon. किसी भी मसीह के संस्थाओं के द्वारा जो पब्लिश किए हुए जो पुस्तक है और डिक्शनरी जो है शब्दकोश है, और किसी भी ऐसे जगह पर ऐसे सारे सत्यों के बारे में नहीं लिखा है जो आपको ग्रहण करने के लिए कभी कठिन भी हो सकते हैं। Then how the soul is coming into us in a present day, our soul, spirit, how they are coming inside us.
और प्राण कैसे हमारे पास में आता है, और प्राण शरीर आत्मा हमारे अंदर में आके कैसे रहते हैं, और इनकी कार्य कैसे होता है, ये कैसे शब्द। Then thirdly, when we die, where our soul goes, where our spirit goes. जब हम लोग मरते हैं तो हमारा प्राण कहाँ चला जाता है और हमारा आत्मा कहाँ चले जाता है। So you have 100 secrets about the soul, spirit, body with the biblical references. अब बाइबल के आधार पर, पवित्र शास्त्र के आधार पर हम लोग करीबन बहुत से 100 से ज़्यादा ऐसे रेफरेंस संदर्भ आपको देंगे कि ये सारी बातों का रहस्य खुल जाएगा। Where is the soul in our body? हमारे शरीर में प्राण कहाँ पर है? Where is the spirit in our body? हमारे शरीर में आत्मा कहाँ पर है? So what are the works of the soul and spirit? और आत्मा और शरीर के कार्य क्या है? What are the ministries of the soul and spirit? और प्राण और आत्मा के सेवकाई क्या है? How to prepare our soul, spirit, body for the second coming of Jesus? This is a short-term course, 3 months, 100 secrets. 3 महीने में 100 रहस्यमय जानकारियां आप हासिल करोगे कि हमारे प्राण, शरीर और आत्मा को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। Another course I am introducing you. तीसरा एक कोर्स में आपको परिचित कराने जा रहा हूं। So this course, it's all about a course about first coming of Jesus, second coming of Jesus, and the third coming of Jesus. 3 months short term course. 3 महीने में ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, थोड़े थोड़े समय तक चलने वाले, कि पहली बार यीशु मसीह का आना आगमन, दूसरी बार यीशु मसीह का आगमन और तीसरी बार यीशु मसीह का आगमन ये किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम लोग सारे रहस्य जो परमेश्वर के वचन में लिखे उसके बारे में हम देखेंगे। How to understand the first coming of Jesus, the purpose for which Jesus came down to the earth. We will teach you. पहली बार जो यीशु पृथ्वी पर आए थे उनका उद्देश्य क्या था, और ये उद्देश्य किस प्रकार से हमारे पास पहुंचा गया, उनका कार्य किस प्रकार से हमारे पास आया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। What is the secret of the second coming of Jesus? और दूसरी बार यीशु मसीह आए थे उसका रहस्य क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। From where Jesus is going to come? और कहाँ से यीशु आने वाले हैं, Which place he is going to come and stay? और कहाँ पर आके वो रहने वाले हैं। How we are going to be resurrected and transformed during the second coming of और Jesus. किस प्रकार से हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है और हमारा भी पुनरावृत्ति या बदलाव होने वाला है। Next, the third coming of Jesus. और दूसरी बात जो है कि यीशु मसीह का तीसरी बार आना, How Jesus is going to come upon the Mount of Olives. और जैतून पर्वत के ऊपर यीशु मसीह किस प्रकार से कैसे आने वाले हैं। Then how he is going for a war of Armageddon. और अरमगेदोन के युद्ध में भी वहां पर किस प्रकार से होने वाला है। Then how he is going to be the King of Kings in Jerusalem to rule all over the earth for 1000 years. यरूशलेम में आकर 1000 साल तक किस प्रकार से राज्य करने वाले, उसके बारे में हम देखेंगे। First coming of Jesus. पहली बार यीशु मसीह आने वाले, Second coming of Jesus. दूसरी बार यीशु मसीह का आगमन, Third coming of Jesus. तीसरी बार यीशु मसीह का आगमन। 3 months short term course. 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। 100 secrets. 100 करीबन जानकारियां 12 hours. और 12 घंटे हैं। If you pay every month 500 rupees, total 1500 rupees. If you pay at one shot 1000 rupees, discount of 500 rupees. The medium of instruction is English, Hindi and Tamil. इंग्लिश, हिंदी और तमिल में ये सारी जानकारी आप हासिल करेंगे। और 1 महीने के कोर्स की फी 500 रुपये है, 3 महीने के 1500 रुपये होते हैं। लेकिन आप एक ही बार अगर फीस को भरना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा और 1000 रुपये में ये सारी बातें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। Do not wait for tomorrow. Join today, please. कल का Today itself join our courses and be blessed. कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही आप ज्वाइन हो जाए, आज के ही दिन में आप प्रवेश कर लीजिए।